Yes, Rahan. Is I'm audible to you? Yes, beta. Is I'm audible to you? Yes, sir. Yeah. Now your voice is audible. Clearly audible. Okay. Okay. So here are some questions on your screen. Uh, let's you do question number 18, 5.18. Try question number 5.18. Okay, sir. Which formula will you use, beta? Sir, I didn't read the complete question yet. I'm still. Not read the question? Yes, sir. Do it fast, beta. जल्दी करते हैं. Sir, Yes, beta. PS PV is equal to nRT, and place of nRT we substitute W by N. Yeah. That's we have written the formula previously that I was talking. Let me explain you. Okay. We have to use the formula that R is equals to that we have calculated the yesterday the formula. मेरा पता नहीं, pen यहाँ पर चल नहीं रहा. Let me help you. Wait. So this formula you have to use, beta. कि, we know that P1 PV is equals to nRT. Okay, so here you can relate it with the R. So we have this formula PV upon R, sorry, upon N. तो R तो दोनों का सेम है, तो R से R कर जाएगा, तो you have to write P2 V2 upon N N2 and here is T2.
and n is the number of moles. आपको पता है कि यहाँ पर p and v is also same for this, so this is also same at same volume. Okay, and the temperature is different, and the number of moles can be written as W by M. So this will is in the denominator, so you can write it P into M upon W. Here it is M1 upon W1 into T1 is equals to P2 upon W2 into M2 to T2. So by using this formula, please try to find out the value. And since the pressure is also same, so this will also be cancelled out. Pressure is same, so this will also be cancelled out. Now you have to solve this formula according to this. Sir, Yes, beta. 176.1. Answer 76.1. No, beta. 176. No, it is 40 gram per mole. You have to calculate the molecular mass, na? 40 gram per mole. Oh. It is 40. Have you calculated the temperature? Have you converted the temperature in Kelvin, beta? No. Oh my God. Have to convert this one in Kelvin.
So the answer is around 40, right? Answer is around 45. 40. 45. 45. Hmm? No, so I'm getting the answer around 40. So I think I made mistake in the calculation again. Okay, this is the answer is 40. When you calculate, it is 40 gram per mole. Okay. Okay. So should I help you, or you will be able to do this one? No, sir, I'll be able to do it. Okay. You have to put the formula and you have to convert the digits into the मतलब आपको Kelvins में convert करना है, and then you will be able to solve this problem. It's not that's not a big task. Okay. So let's move further. Let's try one or two questions more. Okay. So here are some important questions. Try to do the question number 1.17. Okay, when we are taking the pressure, you need to keep in mind here that when we are taking the pressure in the form of bar, then 1 bar is approximately equal to 1 atm. So don't hesitate with that the pressure is given in bar and we should take the pressure in atm. So you know that 1.1013 1.01 कह सकते हो आप एक तरह से. So that is equals to 1 atm, and 1.013 bar is equals to 1 atm. So that is approximately equal to 1 atm. Okay, that's not a big deal. So here the value of R changes slightly too. If we take the pressure in atm, so we take the value of R is 0.0821, and if we take the pressure in bar, we take the value as R is 0.083. So that's not a big change. Okay, but the unit is same, mole per Kelvin. Okay, बट यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा, बार में वहां पे एटीएम होता है, बस इतना फर्क है. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस वन आल्सो. So, sir, I need not change the value of 1 bar pressure. I can just use it as 1 and the value of R also. या यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ 1. आर की वैल्यू आर की जगह पुट कीजिए, कोई इतना फर्क नहीं आएगा, वही सेम आता है आंसर. Okay. The same formula you have to use. Molar mass of carbon dioxide is 34. yeah.
The answer is around 1.4. Answer is 5.05 liter, beta. 5.05 liter. So we use the formula PV is equals to nRT, right? Yeah. Have you changed the temperature to Kelvin? Yes, sir. What's your temperature? 304.1. Yeah, 304.1. Here you have taken the value of 8.8 divided by 8.8 into 0.083 into 304 upon 44 into 1. Have you put that value? But a direct formula based question. Eh? Yes, so we'll divide the given mass by the molar mass. So we'll get 0.2 and then we multiply all the values. I help you? Yes, sir. Okay. Here we have PV is equals to nRT. Okay, so we can say that PV is equals to nRT. So V is equals to nRT divided by P. Okay, and this is W by M. Okay, into R into T into divided by P, and P is actually 1 here. Pressure is 1 bar. Okay, so you can write here W is 8.8. Yeah, 8.8 into R is 0.083. Okay, into temperature is 304.1 upon 44 into 1. So when you divide it, you take the decimal here and you get here 10, and you divide it, you will get 2. Okay, now when you multiply these all terms, what you will get? So let you multiply these two terms first so that it will create an easy calculation for you. Okay, so yeah, you can divide it, multiply it. So you can 304.1 multiplied by 83. I'm just multiplying it directly by 83. So you will get here 3 4s are 12, 1 carry, and then 3 1s are 3. Sorry, 303, 3 3 is 9. Okay, into 8 1s are 8, 8 4s are 32, 3 8 0 3 8 3 are 24. Okay, so we are going to have this value, that is 3 11, sorry, 10, then 4, then 9 and 3 will get 12, 1 carry, and then 2, and then 5. Okay, and you have to place the decimal after the, how much is it, 1 and 3. So this is 0.0, so you will get, you have to put the decimals after the 3 and 1 4 digits, 1 2 3 4. Okay, so this is 25 something. Okay, and this is when 25 is being multiplied by 2, you will get 50 point something. 50.4 will be your answer, divided by 10 will get 5.04. Yes, sir, I made calculation mistake. Okay, so should we try one more question, or should we start the thermodynamics? These are So simple. this is complete, sir. The entire thing. Yeah बेटा, क्या कह रहे हो? No, so because vapor pressure was there, liquid state vapor pressure. हाँ, कौन से क्वेश्चन में? इसी में No, sir, in the chapter, sir. वेपर प्रेशर वाला लिक्विड स्टेट, वो तो सिलेबस में नहीं आ रहा अभी. No, so that is there. In the liquid state, surface tension and viscosity is deleted, but liquid vapor pressure is there. Okay, okay. So let's try some, because you are not good in, I think, in calculation. So I'm going to help you. बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी कि आप पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि अभी हम लोग स्टार्ट कर दें, पहले हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो हियर वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5.16. आप एक दो क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करके दिखाइए, फिर हम लोग चलते हैं उसी पर. So could you repeat which question?
5.16. I have given you the assignments. Nishka has sent you the assignment. Have you done that one? Hmm? No, sir, I didn't check. You didn't check? Why? Sir, because in my when I first registered, so it was showing no classes. So I deleted the app and then I registered through the website again. But it was showing that your account would be updated. Okay, okay, okay. Do question number 5.16. Most of the chapters we have studied this one. We usually teach the student the whole chapter because the need for the NEET and JEE point of view, we don't cut the syllabus. We teach the students the whole syllabus that is in our NCERT. But you were saying that the some part are deleted, so you don't want to study. So that was checking which part of this chapter is deleted because we used to teach the whole syllabus. Are you doing question number 5.16? Yes, sir. What is payload? Is the difference between how will you be able to calculate this one? Do you have any idea? Tell me first. No, sir, I'm still going through the questions. Okay, read it one and then let explain me that how will you be able to solve this question. Okay, sir. Sir, Yeah, beta. so the mass of the balloon is given. The And mass of then yeah. we find the volume of the air displaced, and using the density, we find the mass of the air displaced. Yeah. Air displaced, what, how much amount of air will be displaced? That would be the volume of the balloon. Okay. The volume of the balloon with the help of radius, you can calculate the volume of the balloon as 4 upon 3 pi r cube by keeping the radius 10 and pi's value as 3.14. You can calculate the value of the air displaced by the balloon. Okay. Yes, sir. That will be the volume, means that will be the volume of the air displaced, and then with the help of density you can calculate the mass of the air displaced. Okay. Yes, sir. Then by using PV is equals to nRT, you have to calculate uh, the mass of the helium inside the balloon, and then you have to calculate the difference.
निष्कर्ष सर ने जो आपको असाइनमेंट भेजे उनको करके मुझे भेजिएगा बेटा, आई विल चेक इट। ओके, Okay, sir. when you calculate the mass of the helium, okay, then add 100 kg mass of the balloon also to it, and then subtract it from the mass of the air displaced. Okay, Sir, I didn't get that point, sir. आई एम सेइंग कि जब आप उसमें ऐड करोगे, मतलब आप हीलियम का मास निकाला आपने, तो हीलियम का मास सपोज कीजिए m आया, तो m इज द मास ऑफ द हीलियम, बट हीलियम के साथ साथ बलून का मास भी तो है ना। पेलोड क्या होता है, मतलब कितना लोड हीलियम बलून उठा सकता है, उठा सकता है। सो उसका सिंपल सा जवाब होता है कि जितनी उसने एयर को डिस्प्लेस की उसका मास माइनस जो बलून का मास है हीलियम के साथ। ठीक है, तो एयर डिस्प्लेस करने का मास आप निकाल निकाल चुके। ओके, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल लिया आसानी से, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से मल्टीप्लाई किया, और मतलब मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आपने मास निकाल लिया जो एयर डिस्प्लेस हुई है। अब उसके बाद आप हीलियम का मास निकालोगे जो बलून के अंदर है। ठीक है, उसके बाद उसमें 100 kg और ऐड करना होगा जो बलून का मास है। ओके, बिकॉज 100 kg इज द मास ऑफ एम्प्टी बलून। Oh, okay, sir. व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम? मोलर मास ऑफ हीलियम बेटा, I'm calculating it. I got molar mass of helium, you know that molar mass of helium is 4. 4, but you have to take this one in grams, don't forget to take this one. Okay, because your each and everything is being given in the kilograms, so usko sahi se kilograms mein convert karke लिखना। That would be 4 into 10 to the power minus 3 kilograms. Okay, Oh, okay, sir.
What is the mass of the air? Let me check your calculation, please, beta. What is the mass of the air you displace? That is displaced. So I got 233. Hmm? 233. Air displaced by the balloon. What is that mass? So Air I got displaced. 33. No, wait. No, sorry. 5016. 5016. Air displaced by balloon. Yes, Yeah. sir. 5016 or 5000. Yeah, it will be approximately that one. Okay. 5016 kg. And so I'm getting mass of helium is 233. 200 and the mass of the helium is 233. 33. Yes, sir. It will be more beta. It will be 1117 something. Mass of the helium displaced. Let me help you. So you know that PV is equals to nRT. Okay. Again, then you have to write here. You have to calculate the volume. First of all, you need to calculate the mass. Na? Yeah, you have to calculate the mass. So pressure is same and volume of the balloon is we have calculated that one is we have already calculated the volume according to the so you can write here that pressure is 1 bar. कितना pressure था? Pressure is 1 bar. 1 ही bar होगा जाहिर सी बात है. 1 bar into volume 4 upon 3 pi r cube 4 upon 3 pi r cube. R is 10. Sir, Yeah, beta. so we can round off 1.66 to 1 bar. Pressure. You can write So the pressure is given as a 1.66. pressure is given. Yes, sir. Yeah. Pressure is given. Pressure is given. That is 1.66. Okay. And this is phi is 3.14. You can write it 3.14 or you can write it 22 by 7. 22 by 7 into 10 cubes is equals to W. W of helium is actually W of helium is 4 into 10 raised to the power minus 3 kilograms. We have to calculate this one. This is the mass 4 into 10 raised to the power minus 3. Okay, and W into R is 0.083 in temperature. Temperature is, what is the temperature? 27 degrees Celsius means it means 300 Kelvin. Okay. Okay. So if you are Yes. calculating the mass small m, the value of small m would be equivalent to 1.66 into this whole. You have already calculated the volume earlier. And what was the value of your volume? Is 4 4180. 4180. Okay. Yes, sir. This will be 4190. Okay, sir. Okay, 4190.5. Okay, this is the whole value is this one. And this 1.66 into 4 into 10 raised to the power minus 3 upon 0.083 into 300. ओके दिक्कत अगर तुम बोलोगी तो मैं ये भी तुम्हें बता दूंगा कि किस तरह से है ना. ओके नाउ अब इसका तरीका कैसे होता है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ बिगर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स. सो वी यूज्ड टू कीप इन माइंड देयर कि हम लोग को कुछ इस तरह से लिखना होता है कि हमारी जो क्वांटिटी है सबसे पहले डेसिमल्स को हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जो जीरो वाली क्वांटिटीज होती हैं उसको बिल्कुल नहीं छूते हैं. okay, we have to do such like that. Okay, so for example, if I'm going to remove this one, so I can write it 3 into 100 and this 3 we can cut this with this one. Okay, isko hum log cut kar denge. So if we cut this one, what value we'll get, we can check which number is exactly divisible by 3. Like this we can check if this is 415 5 and 9 14 14 and 5 19. Okay,
सो यू कैन डू दिस वन 8. इसमें कोई इतना फर्क नहीं हुआ क्योंकि डेसिमल्स के बाद ही वो है, तो उसमें अगर तुमने इसको 4 भी कर दिया 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए तो आप उसको कर सकते हो. ओके, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग मतलब इसको करने की जगह पे आप इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हेन यू डिवाइड इट बाय 3 व्हाट यू विल गेट, 3 1s are 3, then 1 carry, 3 3s are 9, then 2 carry, then 3 9s are 27, then 2 0, then 3 6 are 18. Okay, 18, and then 1 and 1 and sorry 2 2 and 4, 3 6 are 24. Okay, so you can write it 1396. ये आपको डिवाइड किया 3 से. अब यहाँ पर सिर्फ 100 बचा हुआ है, उसको 100 को नहीं डिवाइड करना, उसको एकदम छोड़ देना है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 100 से डिवाइड करना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है. Okay, now we have this one. This is 1.66 into 1396.6 into 4 into 10 raised to the power minus 3 upon 0.083 into 100. Okay, now you can remove the decimals of this point by keeping the thousand in the above, 10 raised to the power 3, and this 10 raised to the power 3 and this 10 raised to the power 3 will get cancelled out. Okay, ये तो पता है कैसे होगा, इसमें कहीं डाउट तो नहीं है. Now this is 83 ना. I didn't understand that still. Hmm? I didn't understand that still. So we first multiplied by 1000 and then we took it to the numerator. Is it like that? Yeah 1 2 3, this is 1000 ना. यहाँ पे 10 to the power minus 3 तो पहले से ही, क्योंकि वॉल्यूम मास इज ऑलवेज टेकन इन ग्राम्स. तो हीलियम का मास हमने उन्होंने केजी में रखा, दैट इज 4 into 10 to the power minus 3 kg, क्योंकि बिकॉज 4 ग्राम इज इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 3 kg होता है. सो ग्राम्स में ही एक्चुअली वो हमने केजी में करके लिख दिया, उससे कोई इशू नहीं है, हमारा मास अब केजी में आएगा. Okay, the small mass will be in kg. So what I did here is I've written is 0.083. So for removing the decimals, I placed 3 zeros, 3 1 in 1000. I multiplied it with 1000, and this is 10 to the power minus 3. So this will cancel out. Okay, ये समझ आया? Yes. Now Yes, we sir. have 83 in the denominator now. बस हमारे पास 83 है denominator में. Okay, so if you convert this one to 84, अगर आप इसको 4 से कट कर देंगे तो ये बहुत आसानी से आपके लिए हो जाएगा, या फिर आप इसको exactly इससे डिवाइड कर दीजिए तो you will exact it is exactly divisible by this one. ये आप इसको 2 से एकदम exactly डिवाइड कर सकते हैं. So this will be exactly divisible and this will be 83 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसके डेसिमल्स भी आप रिमूव कर लीजिए. अगर आपको डेसिमल से प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर 2 डिजिट में 200 लगा दीजिए, 2 zeros, and now this is 166, and when you divide it you will get 2 here. Okay, now you have only 10,000 in the denominator. अब आपको सबकी मल्टीप्लाई करनी है. Simply this you are going to multiply with 8. इसकी मल्टीप्लाई 8 यानी 8 से कर दीजिए पहले और फिर इसकी मल्टीप्लाई, means you 1396.6 you have to multiply by 8. 8 6 are 48, and 4 carry, 8 6 are 48 and 4, that will be 52, and 5 8 9s are 72, 72 and 5 77, and 7 carry, and 8 3s are 24, 24 and 7 31, and 3 carry, 8 1s are 8 and 3 11. Okay. Okay, Yes, sir. so you get this value 111728 divided by 10,000. You have to place the digit after the 4. 1 2 3 4. You have to place the digit after the 4 digit now. So it would be in kgs. So because we have removed this one, so this will be 1396. When you multiply this one, you will get this value, and 11728, and when you divide it by 10,000, you will get 1.1234 11.728. Okay, 11.728 is the volume, is the mass of the gas. But this is not true. I forgot. Oh, this is 100 and this is 0.821. When you divide it between 4 by 3, 0.821. ये मेरे पास 300 केल्विन था, यहाँ पे मैंने 4 into 10 power minus 3 किया. उसके बाद 4 बेटा, ये जो वॉल्यूम था ना, ये that was 4.190 into 10 raised to the power 3 था. ये जो वॉल्यूम था ये हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं, इसकी जो पावर है ना ये रह गई. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 10 raised to the power 3 एक बचेगा, तो यानी कि इसके पास हमें
we will get a value that is approximately equal to that is equivalent to 1 मतलब एक ही डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल आएगा. Okay, that would be 1117.2 kg. हमारे पास ये वैल्यूज आएंगे. यहाँ पर अभी हमारे पास आ रहा था, देखो मैं बता देता हूँ आपको. अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो ये कितना वैल्यू आएगा. लेट मी कैलकुलेट दिस वन बेटा. आर इज इन मीटर ना. यस, यही मैंने कैलकुलेट नहीं किया, उसी में गड़बड़ हो गई. सो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी ना, उसमें फिर 100 हम लोग प्लस करेंगे. हमारी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं है, बस मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कहाँ मैंने. एट दिस वन 4. आपका वॉल्यूम कितना आ रहा था बेटा, बलून का वॉल्यूम कितना आ रहा था आपका. So व्हाट it वाज was द 4180. 4100. Sir, I rounded it off, sir. According to the calculator, it comes something like 4186.6. ओके. ओ दैट वाज इन मीटर क्यूब. ये मीटर क्यूब में आएगा ना. ओहो 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 ओहो, ये किस में आएगा बेटा. ये मीटर क्यूब में आएगा ना. और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लीटर, ये आपको याद रखना होगा कि हमेशा कि जब आपको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स जो होती है ना, आर की यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं. सो ये जो मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम, क्योंकि आपने रेडियस जो रखा है वो किस में रखा है, दैट इज इन मीटर में. तो ये जो वॉल्यूम आएगा आपका किस में आएगा बेटा. दिस वॉल्यूम विल कम्स इन Meter cube. किसमें आएगा, मीटर क्यूब में Meter. आएगा. देन मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000. Yes, sir. सो वो 1000 वाला डेसिमल्स यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो गया है. सो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग ये वैल्यूज रखेंगे, सो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल्स डिजिट बाय डेसिमल आएगा, यहाँ पर एक डिजिट बाय डेसिमल. हमारा आंसर जो होगा दैट वुड बी एक्चुअली हमारा जो आंसर आएगा वो एक डिजिट बाय डेसिमल है. सो यहाँ पर आया, लेकिन अभी हम लोगों ने 10 की पावर 3 वो जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने भूल गए थे. तो यहाँ से ये 3 जीरोस हमारे खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारा एक डिजिट बाय डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा. वी विल गेट 1117.28. ओके, दिस विल बी आवर वॉल्यूम्स. अब इसको आप ऐड कर दीजिए, इसमें 100 kg और ऐड कर दीजिए. तो टोटल मतलब मास ऑफ द बलून आपके अलोंग विद हीलियम. टोटल मास ऑफ बलून along with helium would be कितना 1117.2 plus 100. So that would be equivalent to 1217.28 kg. ओके. और आपका जो एयर डिस्प्लेस हुई थी वो 4000 समथिंग थी. कितना था तो एयर डिस्प्लेस हुई थी, वो आपकी थी दैट वाज 5000 समथिंग kg. ओके. Yes, sir. तो उसमें से इसको माइनस करोगे तो पेलोड आपके आ जाएगा. ओके, समझ आया क्वेश्चन. So what mistakes we have to keep in mind that when we have to given the radius in meter, then in that case we have to convert that radius into the, मतलब वो रेडियस को या वॉल्यूम को आपको लीटर में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि लीटर के में ही हम लोग मेन, मैंने बताया था ना कि हम लोग जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम आर में रखना होगा. आर की वैल्यू ये रखनी होगी 0.0821 या 0.083. अगर प्रेशर बार में है तो प्रेशर एटीएम में और बार में सेम ही लगभग होता है, तो उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. और वॉल्यूम हम लोग को लीटर में रखना होगा. वी आर नॉट श्योर टू राइट. ठीक है, हम लोग को उसमें नहीं रख सकते हम लोग. ओके, गॉट इट. और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है, या 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब. ओके, और 1 डेसीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हो, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. खैर, ये समझ आया आपको. Yes. ओके, सो ट्राई वन और मोर क्वेश्चन. अब तो टाइम ही नहीं बचा बेटा, तो यही कर लेते हैं. Sir. बेटा. सर अगले चैप्टर में अगर हम लोग कहते हैं क्लास में न्यूमेरिकल करने की वजह मैं सो यू कैन असाइन मी द टेक्स्ट बैक न्यूमेरिकल्स, और मैं उनको होमवर्क की तरह करूँ बिकॉज आई हैव टू डू देम एज एन असाइनमेंट एनीवे. या यू हैव टू डू योर असाइनमेंट्स. ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको, मुझे मिल ही नहीं रहा आपका रिजल्ट, तो मैंने सोचा एक बार करवा के देख लेता हूँ कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है.
अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे हेल्प करनी पड़ेगी ना. It as a like school assignment also, or there for the next 2 chapters. फॉर द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स. तो मतलब क्या कह रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा. सर मुझे अगले 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, टेक्स्ट बैक न्यूमेरिकल्स स्कूल असाइनमेंट है इस विंटर वेकेशन का. आई हैव टू सबमिट इट इन जनवरी. इन जनवरी. एंड व्हेन विल स्कूल ओपन? January 2nd. जनवरी 2nd. ओके. Yes. एंड जनवरी 2nd में ओपन होगा. ओके. एंड नेम द चैप्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू हैव द असाइनमेंट्स. Thermodynamics and equilibrium. थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम. बिना Yes, पढ़े sir. उसको कैसे सॉल्व करोगे? No, sir. तो मैं सोच रही थी कि इंस्टेड के आप मुझे चैप्टर क्लास में पढ़ा दें. I'll do the numericals as a homework. ओके ओके ओके. Like you can assign me those like for every day some. मींस you want to finish your chapters, that is equilibriums. अब दोनों इक्विलिब्रियम आ रहा है, केमिकल भी और आयनिक दोनों. So this is given as one chapter. हमारे लिए एक चैप्टर है. लेकिन बेटा वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे पढ़ाने में तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल. जितना आपसे आ जाएगा उतना आप करिएगा. थर्मोडायनेमिक्स देखो, आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से अब आ चुका है, मतलब इसमें आपको डाउट नहीं होगा. आप एज्यूम कीजिए कि आपने पहले जितना पढ़ा था उसके हिसाब से तो आपको थोड़ा सा बेटर ही हुआ होगा ना. Yes. सो ट्राई So ट्राई. we can start thermodynamics and then you can keep assigning me the text back questions itself as the homework. Is that possible? या व्हाई नॉट यू कैन डू दैट बट होम. बट मुझे चाहिए होमवर्क, मतलब कंप्लीट चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे. अगर आपने छोड़ा तो फिर मैं आपको क्लास में कराऊंगा. Okay. ओके. डू दिस लास्ट क्वेश्चंस. अब तो टाइम नहीं बचा. नेक्स्ट क्लास से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर लेंगे. ओके. Okay, sir. डू 5.12 हो जाएगा. तब तक देख लेते हैं. अगर आप कंटिन्यूस क्लास करेंगे तो हो जाएगा. डू 5.12. So do you want to start the thermodynamics chapter, or tomorrow you will start the liquefaction of gas? So we'll start thermodynamics only because the liquefaction of gases is fine. No, that is deleted, sir. The vapor pressure is there. That is easy. That is fine. Okay, okay. Now I'm sure that you will be able to solve each and every question from this topic. जहां तक मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं. इसमें टॉपिक एकदम क्लियर है. सो सिंपल, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. So 50 Kelvin. Yeah, it will be 50 Kelvin. Okay. So okay बेटा. So should we start the thermodynamics का थोड़ा सा पढ़ लें? Yes.
क्योंकि अभी मेरी क्लास थी 11:30 से, तो वो कैंसिल हो चुकी है, तो मैं सोचा तुम्हें ही पढ़ा दूं। क्योंकि हाँ, आपने बहुत मुझे ऐसी बात। सर, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर सकती हूँ, बिकॉज आपने कहा कि आपकी एक और क्लास होती है। हाँ, लेकिन अभी ना, आज नहीं है वो, मतलब अभी नहीं है, तो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, आज नहीं तो अगर कल आई कैन ज्वाइन अर्ली, बिकॉज मेरी आज कल क्लासेस नहीं होती सुबह में, ओके, so एंड I'm व्हेन यू आर happy. गोइंग टू हैव स्कूल, देन उस टाइम क्या करेंगे आप? सर, उस टाइम पर वैसे भी टाइम चेंज करना पड़ेगा पूरा, लाइक सच में? आई डोंट नो। चलो खैर, लेट्स स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट दीजिए, मैं दूसरी स्लाइड बना लेता हूँ, क्योंकि चैप्टर की नई स्लाइड होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स। सर, यस बेटा। मुझे याद है सर, कल वो जो ग्राफ हमने पढ़ा था उसके अंदर मुझे थोड़ा सा डाउट था। पूछो। ऐसा मुझे वो ग्राफ समझ नहीं आया ठीक से। ऐसे वो ग्राफ समझ में नहीं आया तुम्हें? आइडियल आइडियल गैस और फिर रियल गैस वाला। ओके 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 ओके, मैं समझा देता हूँ फिर से। वेट अ मिनट। The screen is visible to you? यस सर। ओके। सो बेटा, इसमें हम लोग के पास ग्राफ आ गया। यस, दिस वाज द ग्राफ। बेटा, आपको ना हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप कोई ग्राफ को बना रहे हैं, सो आपको ये अज्यूम करना होगा कि इसमें जो प्रेशर दिया गया है वो एक्सटर्नल प्रेशर है कि इंटरनल प्रेशर है। ये तो तुम खुद को सोचना पड़ेगा। ये तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें, सॉरी, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, कोई भी हो, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज करता है, और अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी, गैस के द्वारा इंटरनल प्रेशर लगाया गया तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल इंक्रीज। सो ये आपको अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सोचना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनके बिहेवियर अलग अलग तरह से होते हैं। दे शो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ओके। सो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है ये वैल्यूज, और ये ग्राफ आप बुक में भी देख सकते हो जेड रिलेशन में। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 होती है, 1 से ज्यादा की वैल्यूज तक, आगे तक ये यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, और दिस इज द वैल्यू वेयर z इज इक्वल टू 1। यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 होता है इस पॉइंट पर। उसके बाद यह वैल्यूज ऊपर बढ़ती है हमारे पास, दैट इज 1.2, then 1.4, and then 1.6, then 1.8, और यही वैल्यू नीचे भी आती है इसी तरह से 0.8, 0.6, 0.4। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज देखने को मिलती है। ओके, 0.4 थोड़ा नीचे आता है इसमें, मतलब कुछ इस तरह से 0.4 वैल्यूज होती है। अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो किस प्रेशर की बात चल रही है? एक्सटर्नल प्रेशर की बात चल रही है।
अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाया तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस जो होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी? रियल गैस में, रियल गैस की बात कर रहा हूं मैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ती है कि घटती है। तो आपको पता है कि प्रेशर जैसे हम बढ़ा रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो लूज करता है, यानी करता है एक लिमिट तक। लेकिन अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं, यानी इफ यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो एक लिमिट होती है ना कि उससे ज्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकती ना। एक लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट से ज्यादा, बियॉन्ड दिस लिमिट अ गैस कैन नॉट बी फर्दर कंप्रेस्ड। फिर उसके बाद ग्राफ में पहले हल्का सा प्रेशर लगाया तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ी, और फिर उसके बाद उसका प्रेशर तुम बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, तो उसका उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्लस में आ जाता है, यानी पहले 1 में आएगा, देन इट विल बिकम, और ये 1 जो होता है ये किसका होता है? दिस इज फॉर द रियल गैस। ये रियल गैस का होता है, रियल गैस। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है, जैसे एक हमारे पास ए गैस है, हमारे पास बी गैस है, हमारे पास सी गैस है। तो जेड के हिसाब से हम बोलते हैं अलग अलग गैसेस अलग अलग तरह का वेरिएशंस, यानी जेड के रेस्पेक्ट में शो करती हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली वाली कल इक्वेशंस में, ये जो बात कर रहा था मैं कि पी को बढ़ाया तो हमारे पास पी बढ़ा तो जेड का वैल्यू जो है वो बढ़ गया, 1 से ज्यादा हो गया, तो वो प्रेशर है इंटरनल प्रेशर बाय द गैस। कि अगर इंटरनल प्रेशर गैस का ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। सो ये आपको सोचना होता है कि ये आपको ये जो प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंटरनल प्रेशर बाय द गैस। अगर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा जब हमारे पास अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। हाई टेम्परेचर करोगे तो कौन सा प्रेशर बढ़ेगा बताओ? इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा? इंटरनल। इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर पी जो है वो इंटरनल है और यहाँ पर पी जो है वो एक्सटर्नल है, जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, जो हम चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग को सोचना होता है कि कब हमें इंटरनल प्रेशर लगता है, कब हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके, ये थोड़ा सा वेरिएशन शो करता है, यानी रियल गैस से हमेशा पॉजिटिव की तरफ शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम्स आर एक्सट्रीमली लो, मतलब बोलेंगे बहुत ही छोटी गैस होती है, और इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा पॉजिटिव उसको शो करती हैं। और हम बोलेंगे कि इनका जो मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमारे पास, नाइट्रोजन भी है इसमें कुछ हद तक, नाइट्रोजन गैस भी शो करता है, हाइड्रोजन भी इस तरह से शो करता है, हीलियम भी इस तरह से आता है। तो कुछ गैसेस का हम बोलेंगे कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो कभी नीचे नेगेटिव में, मतलब लेस देन 1 उनका नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। कंप्रेसिबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, कितना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना उनकी स्पीड है, काइनेटिक स्पीड है, कितना वो मूव कर पाते हैं। ठीक है। और तुम्हें बताया भी था कि मैंने हैवियर गैसेस जो होती हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होता है उतना ही मूवमेंट कम होता है, और जितना मूवमेंट कम होता है उतना ही ज्यादा इजिली वो मूव कर पाता है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट मतलब बहुत हल्की गैस होती है, और हल्की गैस होने की वजह से दे आर इज, मतलब वी कैन नॉट जनरली कंप्रेस, हम बहुत मुश्किल से हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई कर पाते हैं, बहुत माइनस में टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है तब जाकर के मतलब ये लिक्विफाई हो पाते हैं। सो नाउ यू गॉट इट, समझ आया? यस सर। और फिर सर दूसरी गैसेस के लिए पहले जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो वो कंप्रेस होते हैं, और फिर बाद में वो एक लिमिट के बाद जाकर फिर से कहते हैं वो एक्सपैंड होते हाँ, जो दूसरी गैसेस के लिए मतलब कंप्रेसिबिलिटी आती है, फिर उसके बाद वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यू कैन नॉट से दैट कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर यूनिफॉर्मली द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, नो। आफ्टर अ लिमिट द गैस विल स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा पास पास पार्टिकल आ जाएंगे तो इनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। अब ये मना करेंगे कि भाई हम लोग को और पास नहीं आना। पहले जब ये दूर दूर है तब तब ये पास आना चाहते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन जब आपने एक लिमिट के बाद इनको इस कंडीशन पर लेके आ गए तो फिर इनके बीच में बहुत ज्यादा मतलब कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, और फिर आपको ये एक लिमिट के बाद ये वैल्यू जो है वो बढ़ती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ता है उसमें। फिर वो डिपेंड करता है कि मतलब एक लिमिट तक आप कंप्रेस कर सकते हैं गैस को, उसके बाद वो मना करती है कंप्रेस होने से ना। हैं। एंड सर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हेन वी स्टार्ट कंप्रेसिंग देम, दे हाँ, डोंट तो गेट प्रेशर के कंप्रेस्ड। साथ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ये शुरू से ही मतलब ऐसा है, इसमें तो हमेशा से ही मतलब जैसे इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये है कि शुरू से ही ये बिहेव करता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग इट बिहेव कि मैं मुझे कंप्रेस नहीं होना, आई डोंट वांट टू कंप्रेस। तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म है।
मतलब बिल्कुल निल है, मतलब जो रियल गैस के मुकाबले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग बोलते हैं तो निल होती है। इसी तरह से इसके तो पार्टिकल्स में और भी मतलब ज्यादा है, मतलब ये रिपेल करते हैं एक दूसरे से रिपेल करते हैं। उनके बीच में जो मतलब कॉलिजन होता है वो बहुत ज्यादा कॉलिजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिपल्शन भी क्रिएट होता है। सो इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो सिंपल सा एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम। नाइट्रोजन का जो होता है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है कि नाइट्रोजन का ग्राफ भी कुछ थोड़ा सा पहले ऐसे रियल गैस की तरह बिहेव करता है, फिर ऐसे हो जाता है। दिस इज फॉर द नाइट्रोजन गैस। सो अलग अलग तरह से ये बिहेव करता है। गॉट इट? Yes, sir. ओके। सो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करें कि आदित्य रहेंगे? चलो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का अगर मैं इंट्रोडक्शन तुम्हें देता हूँ बेटा, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में फिर से नया बनाना पड़ेगा। एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स? क्या समझते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स वर्ड से? कोई आइडिया? So it's the study of movement of heat, transfer of heat from. या वेरी गुड। या इट इज एग्जैक्टली इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं किसको बेटा? फ्लो ऑफ हीट को। किसको स्टडी करते हैं? फ्लो ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जनरली फ्लो ऑफ हीट को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि थर्मो मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स मींस फ्लो ऑफ हीट। सो इस चैप्टर में हम लोग जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कि इट इज द स्टडी ऑफ, ये वो साइंस है, ठीक है, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब दिस इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स द साइंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हम्म। सर आई डोंट थिंक आपको जरूरत है कि आप डेफिनेशन से लिखें। जब आप आ रहे होते हैं तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। अच्छा, ओके अगर ओके कुछ इम्पोर्टेंट होगी सर मैं आपको बता दूंगी कि आप लिख दीजिए। ओके 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 ओके। सो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट के बारे में हम लोग जनरली इस चैप्टर के इसमें पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो नेचर है, नेचर के अंदर जो वर्क डन होता है फ्लो हीट की फ्लो की वजह से, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डील करते हैं। यानी कि वी डील्स विद द वर्क डन बाय द, मतलब जितने भी सिस्टम है, जितना भी हमारा काम हो रहा है, यानी नेचर के अंदर जितने भी काम होते हैं वो जनरली फ्लो ऑफ हीट की वजह से ही होते हैं। जैसे इफ एन इंजन इज वर्किंग, अगर एक इंजन काम कर रहा है तो इंजन अगर काम कर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो कैसे काम कर रहा है? कि उसके अंदर आपने पहले कोयला या फ्यूल या कोई भी एनीथिंग इन द हीट की फॉर्म में, यानी आपने उसको जलाया और उसकी वजह से पिस्टन्स मूव कर रहे हैं, देन यू आर कन्वर्टिंग दैट फ्लो ऑफ हीट, उसी को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो फ्लो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मतलब हीट को ट्रांसफर कराना होता है। यानी कि मैं बोलूँ कि हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग फ्लो ऑफ हीट को पढ़ते हैं, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग हीट को ट्रांसफर कराते हैं, हीट को मूव कराते हैं, ठीक है। इफ यू आर मूविंग दी हीट, या यहाँ पे हमारे पास कोई भी सोर्स है और सोर्स की जगह यहाँ पर हम लोगों ने माना कि दिस इज सिंक, ठीक है। तो इस हीट को यहाँ से ट्रांसफर कराने के लिए जो हमारे पास मतलब बीच में रास्ते में हम लोग अपना अगर कोई वर्क डन या कोई इसमें रख देते हैं तो वो हमारा ट्रांसफर करने में, जो हीट ट्रांसफर करने में जो हम लोग कोई भी वर्क को इसमें बीच में करा सकते हैं, यानी ट्रांसफर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन हम लोग ये करा सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब this flow of heat actually result in the in
डूइंग द यूजफुल मैकेनिकल वर्क, जो भी हमारे यूजफुल मैकेनिकल वर्क होते हैं, जो भी हमारे काम करने होते हैं, उसको कराने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो हीट फ्लोज होती है हमारी, हीट फ्लोज रिजल्ट्स इन डूइंग यूजफुल मैकेनिकल वर्क। ओके, किस में हेल्प करती है बेटा? यूजफुल मैकेनिकल वर्क में हेल्प करती है। गॉट इट? समझ आया? यानी कि हम Yes, लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो डील करते हैं वो किस में डील करते हैं? जो हीट का फ्लो है उससे हम लोग जो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो भी हमारे काम है उसको हम लोग हेल्प करते हैं। ओके, मतलब उसको करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि हीट जो है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सोर्स से। यानी हीट हीट जिसके पास होता है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, और जिसमें हीट ट्रांसफर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट? सिंक। अब कोई एक डेली लाइफ एग्जांपल दीजिए जहां पर आप हीट और सिंक की में यूज करते हो, मतलब आपको पता हो कि यहाँ पर हीट है और वहां पर सिंक है। कोई एग्जांपल? तो like burning candle. रेफ्रिजरेटर में हम लोग करते हैं ऐसा। रेफ्रिजरेटर Yes, में हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एक तरह से क्या होता है? जो हमारा कंप्रेसर होता है, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं यानी, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग गैस को क्या करते हैं? पहले लिक्विफाई करते हैं। गैस को लिक्विफाई करने के बाद जब वो हमारे हमारे रेफ्रिजरेटर में जब पाइप में गैस जाती है, द गैस इज मूविंग इनटू द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे पास एल्यूमिनियम्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर एल्यूमिनियम्स की कॉइलिंग हुई हुई रहती है, और इस पाइप्स के अंदर वो मतलब उन कॉइलिंग से अंदर पाइप्स जा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो फूड है उसके पास क्या है? हमारे पास हीट है, यानी फूड इज वार्म। यानी जो हमारा फूड है वो हमारा गर्म फूड है। ठीक है, तो हमने क्या किया? उस फूड की हीट को इस ठंडे पाइप में एब्जॉर्ब करा लिया। तो जो भी कोई चीज ठंडी होगी, यानी हम लोग बोलेंगे कि एक चीज गर्म है और दूसरी चीज हमारी ठंडी है, तो जो ठंडी चीज होती है यानी दूसरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक, और जहां से हमारे पास हीट आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी source. कॉल्ड इट सोर्स। ओके, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी की वजह से हम लोग वर्क डन कराते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं। ये वर्क डन क्या होता है एक्चुअली? दिस इज द चेंज ऑफ हीट, यानी कि हीट के अंदर जितना चेंज आया पूरा का पूरा हीट इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाए, ऐसा बहुत मतलब मुश्किल होता है। तो उसमें से कुछ हीट यानी कुछ एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वी कन्वर्ट इट इनटू दी वर्क, अपने वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ आया? Yes, sir. गॉट इट? ओके, Yes. सो ओके, अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज सिस्टम। सिस्टम हमारी, व्हाट इज सिस्टम? हम लोग सिस्टम किस चीज को कंसीडर करते हैं? जिसमें भी बोलो सिस्टम क्या होता है बेटा? इन द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कि हम लोग किस चीज को बोलते हैं? सिस्टम हमारे पास होता है कि हाँ, The reactant and the walls of the beaker. यानी कि जिसमें ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ऐसा एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशन चल रही है। क्या चल रही है बेटा? Observation. ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ कि जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। यानी दैट इज एनी एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर अवर ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो भी है हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख एनी पार्ट विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ओके, अभी किसका पार्ट होगा? एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का भी कोई भी पार्ट हो सकता है जो ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास सिस्टम के बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन होता है कि जो सराउंडिंग्स होती है। सराउंडिंग्स क्या होता है? सराउंडिंग्स दो चीजें हम लोग को पढ़नी है इसके अंदर। व्हाट इज सराउंडिंग्स? सराउंडिंग is the remaining part of the universe that is not in the under observation, यानी वो पार्ट जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिमेनिंग पार्ट which is not in our observation। ठीक है, अब ये सराउंडिंग्स जो हो सकती है ये हमारी ओपन सराउंडिंग भी हो सकती है, और मतलब हम लोग बोलेंगे सिस्टम हमारा इसी तरह से ओपन भी हो सकता है और क्लोज सिस्टम भी हो सकता है। जो सराउंडिंग्स है हमारी, सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई इनके बीच में एक बाउंड्री होती है, मींस देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम।
हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो सराउंडिंग्स है हमारी और जो हमारा सिस्टम है उसके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होती है। अब ये बाउंड्री जो होती है ये एडियाबैटिक बाउंड्री भी हो सकती है, मतलब जिसमें कोई हीट का ट्रांसफर, मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो, कोई मैटर वगैरह, कोई हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो यहाँ से यहाँ में। और इट कैन बी ओपन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डायथर्मिक भी हो सकती है, इसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि पार्ट हीट यहाँ से यहाँ जा सकती है। अब जैसे मैंने बोला कि अब आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, और ये जो पॉन्ड है हमारे पास, जो तालाब है, इसमें से अगर इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो कोई सिस्टम क्लोज नहीं है। तो हाँ, हम लोगों ने मान लिया कि ये इमेजिनरी मानते हैं हम लोग कि सिस्टम और जो हमारे पास सराउंडिंग होती है उनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होती है। अब ये बाउंड्री जो होगी, अगर यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई बाउंड्री है, और वो बाउंड्री जो है वो कैसी बाउंड्री है, इट इज एन डायथर्मिक बाउंड्री, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ हीट हो सकता है। समझ में आया बेटा? यस सर। समझ आया? ओके। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, मेक अ मिनी नोट्स बेटा, ताकि याद रहे क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स। सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स आर separated by boundaries, बाउंड्रीज सेपरेटेड रहती हैं। अब ये जो बाउंड्रीज है हमारे पास, ये दो तरह की हो सकती है, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज है हमारे पास ये दो तरह की हो सकती हैं। बाउंड्री कैन बी ऑफ टू टाइप्स हमारे पास। एक तो हो सकती है हमारे पास कैसी बाउंड्री, दैट कैन बी दी एडियाबैटिक, और दूसरी हमारे पास हो सकती है एडियाबैटिक, एंड द सेकंड वन कैन बी दी डायथर्मिक। डायथर्मिक का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस, और एडियाबैटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। समझ आया? यस समझ सर। आया बेटा? ओके। सो डायथर्मिक और इसमें इसका मतलब तुमने समझ लिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगले टर्म के बारे में, सो हमारे पास ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इसमें हम लोग डील करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग अलग अलग तरह के प्रोसेस के बारे में। अब जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जिस प्रोसेस को डील करते हैं, जनरली वो प्रोसेस होता है हमारे पास रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, मतलब बहुत ही स्लो चलता है, उसको हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आपने उसको बहुत स्लो उसमें कराया, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपने एक एक वर्क डन को बिल्कुल सही से ऑब्जर्व किया है, और पूरी पूरी हीट ट्रांसफर, मतलब जो आपने एनर्जी ट्रांसफर की है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, उससे आपने मतलब मैक्सिमम वर्क डन आपने ले लिया है। अब इसको मैं कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो कैसे होते हैं, और हम लोग कैसे मान सकते हैं कि कुछ प्रोसेस तो बहुत ज्यादा फास्ट भी होते हैं, और जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, यानी इतना स्लो प्रोसेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ से पैरामीटर लेके कि भाई ये स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपने एक एक कोई गर्म चीज है, एक कप है, आपने एकदम से हाथ लगाया और एकदम से उसमें रिमूव कर दिया, तो क्या हीट एकदम से ट्रांसफर हो जाएगी आपके हाथ पर? इफ यू टेक योर हैंड, एकदम से आप लेके गए फास्ट स्पीड से इन द फायर, और आपने एकदम से रिमूव कर लिया, क्या आपका हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा। लेकिन लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा सा टाइम दिया, और इफ यू मूव योर हैंड स्लोली, तो पता है कि आपके हाथ में हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे से होती है। या फिर इसी का एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी काम अगर आप स्लो करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मूविंग अ बाइक एट द फास्टर स्पीड, सो आपको पता है, या गाड़ी या कोई भी, इफ यू आर मूविंग द बाइक और कार ऑन द फास्टर स्पीड, देन ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो वर्क डन है, मतलब उसमें से लॉस ऑफ हीट ज्यादा होती है, यानी कि आपका फ्यूल जो है वो कंप्लीटली नहीं जल पाता है, पूरी एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, पिस्टन बहुत ज्यादा तेज वर्क कर रहे होते हैं। इस तरह से आपके जो वर्क डन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाता, यानी कि जो आपकी एनर्जी, यानी अब जो फ्यूल जल रहा है वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसमें से बहुत सारा फ्यूल जो है हमारा वेस्ट हो जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरेजेस बहुत खराब हो जाते हैं जब हम लोग गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से मूव करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रोसेस जो बहुत ही स्लो चल रहा है, स्लो मतलब बहुत ही छोटा है, और उसके मतलब बहुत स्लो चल रहा है, उसके फ्रैक्शंस को भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको समझाऊं तो मैं तुम्हें ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे इफ यू आर वाचिंग अ मूवी,
आप मूवी देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, फोटोज जो होते हैं वो बहुत एकदम अच्छे से मूव कर रहे होते हैं, मतलब 1/16 या 25 फ्रेम पर सेकंड की 25 FPS की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, या कुछ कुछ गेम्स में 60 FPS से मूव कर रहे होते हैं फोटोज वगैरह। सो अगर आप इनको स्लोली ऑब्जर्व करो, अगर आप इनके एक एक फ्रेम को देखते हो, जैसे स्लो मोशन बोलता हूँ, अभी आपने देखा कि अगर आपने देखा कि एक आपने पानी लिया और एकदम से आपने उस पानी को फेंक दिया, उस पानी को आपने एकदम से फेंक दिया, सो आपको क्या उसके अंदर वाटर के किस तरह से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, किस तरह से ड्रॉप कर रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे? विल यू बी एबल टू ऑब्जर्व? नहीं। अगर मैं बोलता हूँ आप उसी वीडियो को आप 1000 फ्रेम या 10,000 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चलाइए, तो उस वीडियो को जब आप स्लो कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट बन रही है, किस तरह से वो फ्यूज कर रही है, एवरी थिंग्स आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, और फिर आप इन सबको ऐड करते हो तो आप एक पूरी वीडियो बना लेते हो। तो इन द सिमिलर वे इसी में भी हम लोग जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, हम लोग मानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत स्लो चल रहे होते हैं, यानी हम लोग को माना कि एक फास्ट प्रोसेस भी अगर है तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वो बहुत स्लो चल रहा है, और उसके अंदर हम लोगों ने फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया, यानी छोटे छोटे, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक है और हम लोगों ने इसको ऐसे एक ये वर्क डन का एक वो है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैक्शंस में वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शंस में वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे, और बाद में इस सब को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाती है, यानी मैक्सिमम पता चल जाता है कि कितना मैक्सिमम ये हीट अगर यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मैक्सिमम कितना वर्क डन हम लोग को करने को मिलेगा। समझ आया? समझ आया? यस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो रिवर्सिबल मतलब ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर तुम्हें समझना हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि दीज आर those process where the ड्राइविंग फोर्स जो होती है, ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या हुआ बेटा? ड्राइविंग फोर्स होती है यानी कि हम लोग ये मानते हैं कि जब ये कोई भी वर्क डन हो रहा होता है, सो रिवर्सिबल प्रोसेस में, और जो हमारे पास एक तो हमारे पास होती है कि उस काम को मना करे, जैसे सपोज करो अगर आप गाड़ी को बहुत स्लो चला रहे हो, तो स्लो चलाने का मतलब क्या हुआ कि आपने आपकी फोर्स में जो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए मूव कर रहे हो और जो उसको एक पीछे रोकने के लिए फोर्स है, वो बहुत बहुत उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत मतलब हम बोलेंगे कि बहुत छोटा है, यानी कि बहुत स्मॉल है। आ, और अगर स्मॉल है तो मतलब वो जो वर्क डन है वो हमेशा हमेशा चलता रहेगा, मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स हमेशा ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ द स्टॉपिंग फोर्स, सो वो प्रोसेस जो है वो इनफाइनेटली छोटे छोटे उसमें हमेशा आगे तक चलता जाएगा, यानी इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग। सो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो इनफाइनेटली, मैं बोलूंगा इनफाइनेटली मतलब छोटा, यहाँ पे इनफाइनेट मतलब ये मत समझना ना कि बड़ा वाला, इनफाइनेटली स्मॉल बोलते हैं ना, ठीक है। देन द इनफाइनेटली ग्रेटर देन दी, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में ग्रेटर होती है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ द स्टॉपिंग फोर्स। समझ आया? यस सर। ओके। सो हम बोलेंगे दीज आर द दोस फोर्स प्रोसेस वेयर द ड्राइविंग फोर्स, यानी जो फोर्स उसको आगे करा रही है, काम करा रही है, इज देन दी स्टॉपिंग फोर्स, यानी जो फोर्स उसको स्टॉप कर रही है उससे हम बोलेंगे कि, ठीक है, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इस वजह से ये प्रोसेस जो होते हैं ये इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप में चलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होते हैं, दिस process occurs in infinitely small steps, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप छोटे छोटे ये जो वर्क डन है, सपोज करो आपने इससे छोटे उसमें एक किया, तो ये इसका एक वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, तो ये जब ये छोटे छोटे वर्क डन यानी ये जो डिफरेंशियल्स हैं, इनको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द कंप्लीट वर्क डन, तो आपको एक कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, एंड दैट यू विल गोइंग टू स्टडी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो स्टॉपिंग फोर्स होती है वो सॉरी जो हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है वो इनफाइनेटली ग्रेटर होती है स्टॉपिंग फोर्स से,
और ये प्रोसेस जो होते हैं बहुत ही इनफाइनाइट छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्लो हो रहा है, यानी कि एक तरह से अगर कोई फास्ट मोशन भी, जैसे कोयला जल रहा है, तो कोयला जलने का जो प्रोसेस है, अगर हम उसका जितना भी वर्क डन है उसको बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस में हम लोग निकाल लें, तो हम लोग उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कोयला जलने से कितना कितना वर्क डन हम लोग ले सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन। हालांकि हालांकि रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत हम बोलेंगे कि इतना स्लो चलने वाला प्रोसेस, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक्स एंड द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, वो दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। थर्मोडायनेमिक्स का रिवर्सिबल प्रोसेस और उसका रिवर्सिबल प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द प्रोसेस ऑकर्स इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होते हैं, और दैट आर डिफरेंशियल एलिमेंट्स, हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जिसको आप बाद में इंटीग्रेट करके आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है। एंड वर्क डन can be calculated by integrating these elements इन डिफरेंशियल एलिमेंट को। का मतलब वेरी स्मॉल, राइट? हाँ, डिफरेंशियल का मतलब बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस में हम लोगों ने, मतलब सोच लो कि सपोज कीजिए कि एक फास्ट मूविंग कार है, अगर मुझे उसके अंदर सब कुछ देखना है कि उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी को एक स्लो प्रोसेस, मैं ये तुम्हें क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ताकि तुम एक रियल लाइफ से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस। कि अगर एक फास्ट मूविंग कार भी है, अगर आप उसका स्टेप एक एक चीज देखना चाहते हैं कि वो उसके अंदर कैसे चेंजेस आए, तो आप उसको बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ दीजिए, बहुत ही छोटे छोटे फ्रैक्शन। आप इमेजिन करिए कार बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो, तो आप सारी चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे, एक एक चीज उसके अंदर जितना चेंजेस हुआ वो सब कुछ कैलकुलेट कर पाओगे, एक एक चीज। सो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम लोग उन प्रोसेस को मानते हैं जो कि बहुत ही इनफाइनेटली, जिसमें ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो बहुत ही इनफाइनेटली, बहुत ही छोटी सी, मतलब इनफाइनेटली मतलब छोटी सी ज्यादा होती है, ग्रेटर देन द स्टॉपिंग फोर्स, ओके। और इस प्रोसेस को हम लोग, जब हम लोग इन प्रोसेस को करते हैं, यानी कि तो बाद में ये सारे प्रोसेस को जितना भी होंगे, मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको मैं ऐड करता जाऊं, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो बाद में हम बोलेंगे दिस प्रोसेस आर इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, होते हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप में होते हैं, और दैट आर डिफरेंशियल एलिमेंट्स। हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब इनको हम डिफरेंशिएट करके, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, और फिर आप इनको, अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने पर आपको मिल जाएगा। समझ आया? यस सर। गॉट इट? यस सर। ओके ओके। सो आज के लिए इतना ही रखें, अभी हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बस आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, गॉट इट? समझ आया बेटा? यस सर। अच्छा, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह के प्रोसेस में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, क्यों हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमारे पास इस तरह के वर्क डन की कैलकुलेशन में जो भी लॉस है, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी या वर्क डन, या जो भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे पास एकदम जीरो हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह के प्रोसेस में जो मतलब हम मानते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट्स में जो लॉस ऑफ वर्क है वो हम लोग मानते हैं जीरो है, ठीक है। सो वर्क इज फाउंड in the work found in differential equations or differentials. Differential is with no loss, क्योंकि हम लोग जो वर्क फाउंड करते हैं डिफरेंशियल में, हम लोग मानते हैं कि उसके अंदर कोई लॉस नहीं हुआ है, हमने हर एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, हर एक मूवमेंट को हमने ऑब्जर्व किया है, और उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग को क्या देते हैं, ये प्रोसेस हम लोग को प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वर्क, ठीक है। यानी कि जितना भी हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी कोई हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें जितना भी हम लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? समझ आया? यस सर। जी। So work found in differential.
So are we assuming कि कहते हैं कोई heat loss नहीं होती है sir? Is it like that? या हम लोग क्या मानते हैं कि छोटे छोटे प्रोसेस में जब हम लोग किसी चीज को बहुत इनफाइनेटली स्लो करते हैं, ठीक है, तो उसमें हीट का लॉस, यानी हम वैसे ये प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है और हम लोग को एक ऐसा, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोगों ने आइडियल गैस मानी थी कि जबकि ऐसी कोई जल्दी से कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती जो आइडियल हो, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट किसी सर्टेन टेम्परेचर पर कुछ गैसेस होती हैं जो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर जाती हैं। इसी तरह से हम लोग बात है कि इसी तरह से हम लोग एक ऐसा इंजन या ऐसा ऐसा वर्क या ऐसी, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई एक इंजन बनाना है, तो आप क्या सोच करके उसको बनाएंगे कि उसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम हमारी जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में, यानी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए वो स्टेप्स आपको कैसे पता चलेंगे? वो स्टेप्स आपको ऐसे पता चलेंगे जब आप किसी एक प्रोसेस को स्टडी करें, पढ़ें कि अगर आपने ये काम किया तो ज्यादा हीट लॉस होगी, अगर आपने ऐसा किया तो कम हीट लॉस होगी। तो हम लोग पहले एक आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या आइडियल हो सकता है, यानी क्या हमारे पास मेन हो सकता है, उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि रिवर्सेबल एक होता है, जनरली नेचर के अंदर इरिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है नेचर के अंदर जिसमें बिल्कुल भी हीट ऑफ मतलब लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी ना हो। होता है, हमेशा होगा। कोई कोई किसी भी इंजन की आज तक 100% एफिशिएंसी नहीं है, किसी भी इंजन की आज तक 100% एफिशिएंसी नहीं है। सो अगर हम लोगों ने, लेकिन हम लोग क्यों मान के चलते हैं कि हम लोग, ताकि हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी का इंजन बना सकें, यानी कि हम लोग ऐसे काम करें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर सके। तो हम लोग ने एक प्रोसेस का नाम रखा है जिसका नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि हम लोग को कोई कोयला जलाना है या कोई भी जलाना है, तो हम लोगों ने उससे हीट एनर्जी निकाल ली। अब हम लोगों ने उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, हमें पता चला कि उसकी उससे जलाने पर सपोज कीजिए कि 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब उस 100 जूल एनर्जी को मैंने सपोज कीजिए पास किया है किसी एक सिस्टम से, और मैंने इससे सपोज कीजिए 90 जूल वर्क डन करा लिया, तो इसमें सिर्फ 10 जूल ही हमारे पास जाएगी एनर्जी, इसमें सिर्फ 10 जूल ही एनर्जी इसमें सिंक में जाएगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इस तरह से काम करें कि हमारा जो एनर्जी है वो मैक्सिमम मैक्सिमम जितना भी हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग मैक्सिममली यूज कर सके। ठीक है, स्टीम इंजन को क्यों बंद कर दिया गया, क्यों हम लोग को डीजल इंजन पर आना पड़ा, वाई वी पेट्रोल इंजन पर आना पड़ा? क्योंकि स्टीम इंजन की एफिशिएंसी उतनी नहीं थी एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ द डीजल इंजन। हम लोगों ने उसमें क्या था कि उसमें सराउंडिंग्स ओपन होती थी, कोयला जलता था, उसकी बहुत सारी हीट वेस्ट हो जाती थी। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंजन के अंदर ही डीजल को जलाया, डीजल को, उसी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसी को हम लोगों ने ट्रांसमिशन में लिया, और हमने हमारी जो लॉस ऑफ एनर्जी थी उसको हम लोगों ने कम किया। तो हम लोग ऐसे प्रोसेस को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमारी जो एफिशिएंसी यानी वर्क की जो एफिशिएंसी यानी ट्रांसफर ऑफ हीट का जो प्रोसेस होगा उसमें जितने भी काम होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी पर अपने, मतलब वो ट्रांसफर ऑफ हीट से हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी से अपना काम कर सके। तो यहाँ पर भी मैं वही बोलूंगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिस जो बहुत ही स्लो चल रहे होते हैं, क्योंकि स्लो प्रोसेस में आप एक एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, फिर आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और ये टोटल वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं हम लोग स्लो प्रोसेस में, क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सको। समझ में आया? आपको Yes पता sir. तो हो कि आपका आपने जो फ्यूल इंजेक्ट कराया है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, आप उससे कितना काम मैक्सिमम ले सकते हो। तो इसलिए हम लोग उसको स्लो प्रोसेस पे करेंगे, और स्लो प्रोसेस पे करेंगे तो देखो कोई चीज स्लो चल रही है तो उसके अंदर साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस, लॉस ऑफ हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस से हम लोग का जो मेन मकसद है, जो मेन काम है, दैट इज दैट वी आर कैलकुलेटिंग दी 100% एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल और द ट्रांसमिशन ऑफ जो हम लोग फ्लो करा रहे हैं हीट का, उसकी मैक्सिमम, यानी जिसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो। Yes समझ sir. में आया? जिसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट करना चाहते हैं कि कितना, कोई एक फ्यूल है, फिर उसके बाद तो थोड़ा बहुत हमारे पास पता ही कि लॉसेस होते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोशिश करें कि हमारा लॉस कम हो। इसी वजह से हम लोग स्टीम इंजन से उस पर हैं, क्योंकि पहले आप उसको एक बार कोयला जला रहे हो तो कोयले से सराउंडिंग हीट हो रही है तो उसमें आपकी हीट चली गई, फिर आपने वाटर को गर्म किया, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर वहां पर हीट चेंज हुई, फिर स्टीम ने टरबाइंस को घुमाया वहां पर, फिर मतलब दे आर सो मेनी प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हमारी जो एफिशिएंसी थी वो खत्म हो रही थी, 50% भी एफिशिएंसी नहीं थी हमारा जो था। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि बाय डे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो गाड़ियों के फ्यूल्स हैं उनके अंदर नई नई इंजन हैं, उनके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास। क्यों आ रही है नई नई टेक्नोलॉजी? क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है हम लोग उसको जबरदस्त करें, और उसके अंदर कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल कम से कम हो जाए। क्यों लिखा रहता है गाड़ी पे कि